Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 4, adjectives. Okay, let us start now this chapter. Kids, first of all we discuss the adjectives column. Okay, words that are used to modify a noun or a pronoun. जब noun और pronoun को modify किया जाता है उन्हीं शब्दों को हम adjectives कहते हैं. Okay, एंड एडजेक्टिव्स में डिस्क्राइब एक एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है और क्वांटिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को. ओके, चलिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर फर्स्ट, स्वीट डिश वाज सर्व्ड टू ऑल. नेक्स्ट, ऑल द बॉयज वर बिजी इन द प्लेइंग. Those people went there to watch a movie. And next, my duty is to serve the nation. In the above sentence, the highlighted words modify the noun or pronoun. जब ये noun और pronoun को modify करती हैं, following them, therefore they are called adjectives. उन्हीं को हम adjectives कहते हैं. Types of adjectives हैं. There are several types of adjectives. On the basis of their function, function के आधार पर जो adjectives होते हैं उनकी types हैं. Some such types are discussed as follow. Number first, adjectives of quality. The adjectives that describe a noun. जब adjectives noun और pronoun को describe करती है by telling you as the quality. Quality के आधार पर, nature के आधार पर, kind के आधार पर, color, shape, size और of a person के आधार पर और things we are taking about our called. तब हम इसको गिनते हैं. इसमें एडजेक्टिव, इसी को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. द आंसर द क्वेश्चन है यहाँ पर ऑफ व्हाट काइंड, कि किस तरह का है. तो जब हम आंसर क्रिएट करते हैं तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एग्जाम्पल है, नेहा इज अ सिंसियर गर्ल. नेहा किस तरह की लड़की है? सिंसियर है. इट वॉज अ ब्राइट एंड द सनी मॉर्निंग. कैसी है मॉर्निंग? ब्राइट और सनी. Adjectives of quantity. The adjective that show the quantity or amount of things are called adjective of quantity. जो adjective of quantity होती है वो quantity और amount के बारे में बताती है. Some example of adjectives of quantity are much, some, many, enough, any, whole, etc. They answer the question है how much. एग्जाम्पल है, प्लीज लैंड मी सम मनी. मुझे कुछ पैसे उधार दे दो. नेक्स्ट है, देयर इज इनफ शुगर इन द जार. यहाँ इनफ शुगर है जार में. ओके, चलिए नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. द एडजेक्टिव्स व्हिच डिस्क्राइब द डेफिनेट नंबर. जो एडजेक्टिव है वो एक डेफिनेट नंबर को डिस्क्राइब करती है ऑफ पर्सन की, एनिमल्स की और थिंग्स की, आर कॉल्ड adjectives of number. उन्हीं को हम adjective of numbers कहते हैं. Some examples of adjective of numbers की, जैसे few, several, each, first, fifth, second, two, one, five, etc. Dear answer the questions है how many or in what order. Example, Shanu stood first in the class. Shanu class first आता है. Every man stood at attention as they hoisted the national flag. Okay, चलिए आगे है किड्स नंबर 4 पर interrogative adjectives. The adjective which are placed before noun, जो noun से पहले यूज किए जाते हैं to ask question, क्वेश्चन पूछने के लिए, are called interrogative adjectives. उन्हीं को हम interrogative adjectives कहते हैं. जैसे which, whose, what, who, why, etc. are the few example of interrogative adjectives. Okay, example है, what time should we leave for the journey. कौन सा समय यात्रा के लिए. and next, whose socks are there. ये किसकी socks है. next है possessive adjective. the adjectives which show the state of possession of nouns
एंड आर प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड द शो पोजीशन, जो नाउन के साथ मिलकर नाउन से पहले ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है, उसी को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माइन, योर, हिज, हर, इट्स, our, their, etc. are a few example of possessive adjectives. The answer the question है जैसे whose, example है I am going to my aunt's house. Next है his shows got the highest ratings. Points to ponder है it is important to understand the difference between possessive adjective and the possessive pronoun. Example, my aunt sent me a pair of shoes. The aunt of mine is the teacher. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो होते हैं possessive adjective. The underlined word in the first sentence has been as an adjective because it qualifies the noun that follows. It is a possessive adjective. However, the highlighted word in the second sentence is a possessive pronoun. Okay? चलिए next number 6 पर demonstrative adjective. Demonstrative adjectives are words that points out the persons or things. Point out करती है किसको? Persons को और things को. Which are being referred to. जिनको refer किया जाता है. They answer the question आता है which. This, that, these and the those are the demonstrative adjectives. Okay. Example है this pen is blue. These boys belongs to them. Okay. चलिए. Next है kids. Identify the adjective. हमें adjective को क्या करना है? Identify करना है. Okay. चलिए kids, you do yourself. Next है the formations of adjectives. Adjectives can be formed by adding suffix to words. जैसे noun से जैसे play. Play का suffix में हम जोड़ेंगे full. Adjective बनेगा playful. उसी तरह nature में all जोड़ेंगे तो adjective बनेगा natural. Nerves में hours जोड़ेंगे तो adjective बनेगा nervous. सुफिक्स में एंट जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा सुफिसेंट. बॉय में इश जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा बॉयश. केयर में फुल जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा हमारा केयरफुल. गोल्ड के साथ इन जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा हमारा गोल्डन. डर्ट के साथ वाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा हमारा डर्टी. सेंस के साथ लेस जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा हमारा सेंसलेस. ओके. चलिए अब है यहाँ पर फ्रॉम वर्ब्स है. जैसे इन्फ्लुएंस में आईएल जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा इन्फ्लुएंटल. टच के साथ वाई ऐड करेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा टची. कंपेयर के साथ एबल एडजेक्टिव बनेगा कंपेरेबल. फियर के साथ लेस तो एडजेक्टिव बनेगा फियरलेस. और अट्रैक्ट के साथ एडजेक्टिव बनेगा अट्रैक्टिव. ओके. चलिए फ्रॉम अदर एडजेक्टिव से जैसे बनेगा होल से बनेगा होलसम. रेड से बनेगा रेडिश. इकोनॉमिक से बनेगा इकोनॉमिकल. और बिग से बनेगा बिगिश. ठीक है. चलिए आगे है ब्लैक से ब्लैकिश और काइंड से बनेगा काइंडली. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. समटाइम्स व्हेन वी वांट टू गिव अ डिटेल, हम चाहते हैं कभी जब यहाँ पर डिटेल दी जाती है और विविड डिस्क्रिप्शन किया जाता है ऑफ समथिंग का, वी यूज टू एंड द 3 एडजेक्टिव्स इन अ रो. तो यहाँ पर रो में 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स को लगाया जाता है. यूजुअली द एडजेक्टिव्स ऑर्डर इज जैसे ओपिनियन, साइज, एज या फिर टेम्परेचर, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल और पर्पल. इन सभी को जब इंक्लूड किया जाता है तभी हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव रेडी होता है. एग्जाम्पल है द चाइल्ड सेट ऑन अ बिग स्क्वायर प्लास्टिक मैट. तो इसमें क्या हुआ? पहले हमारा साइज आया, फिर शेप आई और फिर मटेरियल आया. ठीक है.
चलिए यहाँ पर फंक्शंस हैं। ओपिनियन का एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, डिलीशियस, काइंडली। साइज है बिग, लॉन्ग, स्मॉल। एज और टेम्परेचर का है ओल्ड, यंग, न्यू, हॉट, बॉइल्ड। शेप है स्क्वायर, राउंड, सर्कुलर। कलर है हमारे पास पिंक, रेड, ब्राउनिश। ओरिजिन है इंडिया, एशियन एंड यूरोपियन। ओके, चलिए आगे करते हैं। मटेरियल, मटेरियल क्या है गोल्ड, वुडन, कॉटन। पर्पस है रेसिंग, रनिंग एंड फ्लाइंग। ओके, इन सब के ये एग्जांपल्स है। नेक्स्ट किड्स है यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में डिग्रीज की कंपैरिजन कैसे की जाती है, चलिए करते हैं। एडजेक्टिव एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स टू शो कंपैरिजन। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और इन्हीं 3 फॉर्म्स को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस है। नंबर फर्स्ट, अद्विक इज द टॉल बॉय। अद्विक एक लंबा लड़का है, ये हो गए पॉजिटिव। रवि इज टॉलर देन अद्विक। रवि लंबा है अद्विक से, ये हो गई हमारी कंपैरेटिव। मयंक इज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। मयंक उन सभी लड़कों में सबसे लंबा है, ये हो गई हमारी सुपरलेटिव। नाउ इन द अबव सेंटेंस द एडजेक्टिव टॉल is used to compare one person or one things with another। जब एक वस्तु एक व्यक्ति के साथ कंपैरिजन की जाती है उसे कहते हैं कंपैरेटिव। The way in which and the adjective is used to compare are called degrees of the comparison। And next, adjective are 3 degrees of comparison। और जब 2 से अधिक लोगों के या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन की जाती है उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नाउ द 3 डिग्रीज ऑफ द कंपैरिजन है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। चलिए पॉजिटिव डिग्री डिफाइन करते हैं। दिस डिग्री डज नॉट शो एनी कंपैरिजन। यह डिग्री कोई कंपैरिजन शो नहीं करती। इट सिंपली डिस्क्राइब्स, यह सिंपल डिस्क्राइब करती है नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल, रमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। She is pretty. It was an interesting story. Next है comparative degree. This degree show comparison between, जब इसमें 2 वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन की जाती है 2 प्लेस या सिचुएशन में या थिंग्स में, तो उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। इट्स जनरली फॉर्म बाय देन। इसमें मुख्य रूप से देन का यूज किया जाता है। एग्जांपल, दिस रूम इज लार्जर देन दैट वन। नेक्स्ट, राहुल इज टॉलर देन विवेक। When choice has to be expressed, जब इसमें choice expressed की जाती है of instead of then is used। Example है he is taller of the 2। Next है superlative degree। This degree show comparison, जिसमें comparison show होती है among more than 2 person or 2 things में। It is generally preceded by the। तो इसमें मुख्य रूप से the का भी यूज किया जाता है। Example, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट स्काईस्क्रैपर इन द वर्ल्ड। ओके, बुर्ज खलीफा संसार का सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारतों में से एक है। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। When the superlative degree is preceded by a possessive pronoun or a noun, in the possessive case, the is not used. Example, painting is my best pastime. That was the Priya's greatest achievement. Okay. Next one. Points to ponder. We use then with the comparative degree. We use articles the with the superlative degree. Rules for formation comparative and the superlative degrees. Number first है by adding er and est. जब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाते हैं तो er और सुपरलेटिव बनाते हैं est का यूज किया जाता है। एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लोज का क्लोजर और क्लोजेस्ट, ब्रॉड का है ब्रॉडर और ब्रॉडेस्ट, और लार्ज का है लार्जर और लार्जेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है बाय एडिंग आर और एस टी। इसमें आर और एस टी का यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री में जब एंड्स होता है ई के साथ। एग्जांपल, श्योर का श्योरर और श्योरेस्ट, नाइस का नाइजर और नाइजेस्ट। ओके, चलिए आगे है
सर्व का सर्वर और सर्वेस्ट, स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर और स्ट्रेंगेस्ट। When by changing y into I and adding er, जब हमारा पॉजिटिव डिग्री y पर खत्म होती है तो कंपैरेटिव में y को ड्रॉप आउट करके I का यूज किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में IEST का यूज किया जाता है। ओके, एग्जांपल है बिजी का बिजियर और बिजिएस्ट, प्रिटी का प्रिटियर और प्रिटेस्ट, वेल्दी का वेल्दियर और वेल्देस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, बाय एडिंग er on the ST to the positive degree which ends in the vowel plus y। जब हमारा पॉजिटिव शब्द y पर एंड होता है और उससे पहले वोवल शब्द इंक्लूड होते हैं तो y का y ही रहता है, जैसे गे का गेयर और गेस्ट, ग्रे का ग्रेयर और ग्रेएस्ट। ओके, चलिए बाय डबलिंग द कॉन्सोनेंट, जब हमारे पास दो कॉन्सोनेंट होते हैं देन ER, तब उसमें हम उससे पहले क्या करते हैं ER और EST वर्ड जोड़ देते हैं, डबल कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जब मिड में कंपेरेट वोवल होता है तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे थिन का थिनर और थिनेस्ट, फेट का फेटर और फेटेस्ट, बिग का बिगर और बिगेस्ट। ठीक है, जब हमारा लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो उससे पहले वोवल हो तो हम क्या करते हैं कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक है, आगे बाय प्लेसिंग मोर बिफोर कंपैरेटिव एंड द मोस्ट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, बाय प्लेसिंग मोर बिफोर कंपैरेटिव एंड द मोस्ट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव हैविंग टू और द मोर सिलेबल्स। ओके, जैसे यूजफुल, जब दो शब्द एक साथ होते हैं तो उनमें कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज किया जाता है, जैसे मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। कवर्डली में मोर कवर्डली और मोस्ट कवर्डली। ओके, चलिए इरेगुलर कंपैरिजंस हैं, इरेगुलर कंपैरिजन है जैसे सर्टेन ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म देयर कंपैरेटिव्स, जब हमें निश्चित रूप से कंपैरेटिव का एडजेक्टिव का यूज नहीं करती एंड सुपरलेटिव का इन एनी ऑफ द अबव वेज द थ्री फॉर्म्स डिफर, तो ये जो फॉर्म्स होती हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। ईच आइदर इन देयर पॉजिटिव, पॉजिटिव में अलग, कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव तीनों में अलग अलग पाई जाती है। एग्जाम्पल है फार का फर्दर या फिर फारथेस्ट, उसी तरह बैड का है वर्स एंड वर्स्ट, ओल्ड का है ओल्ड एल्डर या एल्डेस्ट, उसी तरह गुड का है बेटर बेस्ट, लिटिल का है लेस और लीस्ट, और मच का है मोर एंड मोस्ट। ओके, चलिए आगे है किड्स, आपके सामने कुछ फ्लप्स हैं जिनको आपको रीड आउट करना है और फिल करना है। ओके, चलिए नॉर्मली देन इज यूज विद द कंपैरेटिव डिग्री, देन का यूज नॉर्मली रूप से कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, बट मेनी एडजेक्टिव्स थ्रू er आर टेकन एज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद दैट, और इसमें er का यूज भी er के साथ देन का यूज भी किया जाता है। Some such adjectives are former, later, elder, inner, upper, outer and neither आदि के साथ then का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं the inner layer of this jacket is of cotton। नेक्स्ट है some adjective ending, यदि कुछ adjectives हमारे or और er पर खत्म होते हैं then, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, फायरर एंड पोस्चर, इंटीरियर, तो these adjectives are followed by to not then, तो इसमें to का यूज किया जाता है ना कि then का। एग्जांपल्स हैं अनीश इज सीनियर टू सुमित, अनीश सुमित से सीनियर है। ओके, some adjectives do not have the comparative और the superlative degree, यहाँ तक कि कुछ एडजेक्टिव के साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। दे आर एडजेक्टिव, ये कुछ एडजेक्टिव हैं जैसे स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इंटरनल, यूनिवर्सल एंड यूनिक, एक्सेट्रा।
वी कैन नॉट से मोर स्क्वायर, यहाँ तक कि हम इसे ऐसे नहीं कह सकते मोर स्क्वायर, मोर यूनिवर्स आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते. बट वी ऑफ्टन से वी कुड नॉट हैव अ मोर परफेक्ट डे. ओके, नाउ नेक्स्ट आई एम मेकिंग कंपैरिजन. कंपैरिजन बनाते हैं जैसे यूज ऑफ एज डैश एज का. द कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी इज एक्सप्रेस्ड. यहाँ पर इक्वलिटी का प्रयोग किया जाता है जैसे एज डैश एज के रूप में. जैसे कपिल एंड सुजाता आर टॉल, तो कर लेंगे कपिल इज एज टॉल एज सुजाता. कपिल इतना लंबा है जैसे सुजाता. एज वेल एज इज यूजुअली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है यूज ऑफ नॉट एज वेल एज नॉट सो डैश एज. एग्जाम्पल्स है रमन इज टॉलर देन राजन. रमेश टॉलर है राजन की अपेक्षा. राजन इज नॉट सो टॉल एज रमन. राजन इतना लंबा नहीं है जैसे रमन है. राजन इज नॉट टॉल एज रमन. राजन लंबा नहीं है जैसे रमन. नो सो एज इज यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. We can also express the same meaning by using less or least. Example है Rajan is less than Aman, Raman. Okay. Use of least का है. Comparison is also expressed with the word least, the superlative degree. Least क्या है? Superlative degree का word है. Example, that was the easiest exam I have ever written. तो इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे दैट वाज द लीस्ट डिफरेंट एग्जाम आई हैव एवर रिटन. ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट you understood well. Thank you. Have a nice day.